Namaskar. Good evening, everybody. इफ्टिडा इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविज़न डायरेक्टर्स की एसोसिएशन और उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे इवेंट के लिए जो हम सारे लोगों के लिए एक सपना है, एक ड्रीम कम ट्रू है. नाउ कमिंग टू द इवेंट टुडे, मास्टर क्लास विद द लिविंग लेजेंड मास्टर Gulzar Saab. I will request the moderator of this master class today, Mr. Sudhir Mishra, one of the great filmmakers of India, to come on the stage, please. Sudhir was our master in the earlier class. I will request everybody to take your seat, please. I will request my General Secretary Ashwini Chaudhary to please come on the stage. Ashwini ji. Now, the person whom we all are waiting for, no words to, we go numb when we hear him, when we listen to him, when we watch his films. I will request the master of Indian cinema, the great living legend, Gulzar Saab, on the stage, please. Thank you. Thank you. Thank you. Please sit. Please sit down. Thank you. Please sit down. Thank you. Please sit. Thank you very much. Thank you. Now, to begin with this great movement of ours, we have a great actor amongst us who has done brilliant films with Gulzar Saab, who looks younger to all of us sitting here in the auditorium. And he always has looked younger and given us complexes in our lives when we see it. We are presenting a trophy on behalf of IFTDA, and for that, I request Jitendra ji, the star of the India, to come on the stage, please. Parichay, Koshish, Khushbu, Kitab, Kinara. Parichay. What a moment. I don't think anybody can be luckier than this to have and share this kind of a moment amongst us. Yes, thank you. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, Ramesh. Thank you. Now I'll request one of the very leading filmmakers of the industry who is present amongst us, Ashutosh Govarikar ji, to come on the dais and hand over the trophy to our moderator Sudhir Mishra. Sudhir. Thank you. I'll request Kuku Kohli ji, our treasurer of the IFTDA, to present a bouquet to Jitendra ji. What a moment. Thank you, sir. Now we have a poster which normally one of the directors, Saurabh Verma, designs, and all of us do it together. I request Ashwini to please gift that poster which we have specially designed for Gulzar Saab, which depicts our master class. Thank you. Thank you very much. A very interesting thing we have is that when Gulzar Saab became the member of IFTDA, and we have a form in which he had filled that form. It was in the year 1962
when he became the member of IFTDA. His sense of humor was great even then. And the age column, he writes his age as 27, 28. And this form was signed by Raghunath Jhalani ji, and Mukul Dutt ji was chief assistant to Bimal Roy Sahab. We are presenting that form to Gulzar Sahab, and I'll request Jagdish Sharma ji, our maker, to please come and give this form to, they're all our executive members, all working together on this entire show. You know. And we are also giving him a card of his membership, a fresh new card, which is a digital card. Thank you. Thank you. I'll request Sudhankar Sharma ji, member, to hand over the poster to Sudhir Mishra, who is a moderator of our master class today. रखूंगा मैं ऐसे इधर नीचे मेरा नाम भी लिखा Just take this from Sudhir. इसको मैं जब जितेंद्र जी को रिक्वेस्ट करने गया कि आपको आना पड़ेगा और हमारी तरफ से जो हम एक फेलिसिटेशन करना चाह रहे हैं गुलजार साहब को, तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 किस्से सुनाए गुलजार साहब के. मैं जितेंद्र जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें से एक जो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, जब 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 जितेंद्र जी गुलजार साहब के साथ शूटिंग कर रहे थे. जित भाई, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम मेरी तो बोलती बंद हो गई. किस्से तो उस वक्त सुना रहा था जब ये बैठे हुए थे, बहुत दिमाग रिलैक्स था. आप एक तो ऑडियंस सामने जिंदगी पर वही बोला जो किसी ने लिख के दिया. अब कहाँ से बोलूं? और जो खुद शब्दों का इतना बड़ा मालिक है, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ. लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये जो इंसान है गुलजार, ये खुद में एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो पूरे हिंदुस्तान को मिला है. थैंक यू. जब दिमाग और कलम मिलता है तो शायर बनता है, और जब दिल और कलम मिलता है तो गुलजार बनता है. ये लिख के He is one of the sweetest person, most intelligent without showing his intelligence, and with lot of depth, and without any without opposing you, he'll deliver the message which you wanted to oppose him, and make you ride with him what he is thinking about. That's a beautiful quality in him. So if I start narrating, you see, when you grow older, you become talkative. So I start becoming talkative. सर वो भूत वाला किस्सा सुना दो. हाँ? भूत वाला किस्सा. मैं आई बिलोंग टू अ स्मॉल चॉल इन, मैं हकीकत मेरी ओरिजिनल वहाँ से है, गिरगाम से. मैं तो वहाँ से बाहर निकल आया मिडिल क्लास से, वो मिडिल क्लास मेरे से नहीं निकलता बाहर. तो हम महाबलेश्वर शूटिंग गए, तो जब गिरगाम में रहता था तो टॉयलेट यूज्ड टू बी वेरी फार. तो वहाँ भूत कपड़ा का लटका हुआ तो लगता था भूत आदमी बैठा हुआ है, तो बहुत डर लगता था. आई वाज टेलिंग हिम इन महाबलेश्वर, आई एम स्टिल दैट फियर इज देयर अबाउट भूत प्रेत. बोला हाँ, आई ऑल्सो हर्ड स्टोरीज कि रात को यहाँ नर्स आती है और कहती है दवा पी लो. Oh my God! I said, Guldar, I'm staying alone. You know that those houses, small cottages were far away from the main building. अभी क्या डर के मारे सो गए, नींद आ गई. Suddenly I started trembling. दवा पी लो, दवा पी लो. ये नर्स का ही ड्रेस है, ऐसा ही ड्रेस था.
दवा पी लो, दवा पी लो। अभी मेरी लाइफ में एक एगोनी इनके साथ यही रहे, 5-6 साल बिताए साथ में। आई कांट यूज द डेली लिंगो विद हिम। अभी भी मैं कहना चाह रहा था कि वो जो नर्स आई मेरी तो फट गई, वो इनके सामने बोल नहीं सकता हूँ। एंड जो रोज की लिंगो है वो यूज ही नहीं कर सकता था, क्या करूँ। रोज हम आपस में बैठ के माँ की बहन की तो करते रहते नॉर्मल, इधर बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती थी। Anyway, I'm very happy, and I tell you the truth, the best moments of life, see, work is the biggest entertainment. So the best moments and the best entertainment in my life was while I was working with him. I was relaxed and I enjoyed it thoroughly. Thank you. Thank you, Jitin ji. Thank you. Jitin ji. थैंक यू। What a moment, Jitin ji. Thank you very much. Ji, ji, ji. I'll request Guldar Sahab to take his seat here. Sudhir ji. What a moment. Iftida has been managed to do it. So we begin with this greatest moment in the history of Indian cinema. Let us be very sure about it, and there's nothing wrong in saying that. The master Gulzar Sahab today, on behalf of Iftida, Gulzar Sahab, हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट पर आपने हामी भरी और हमें समझ में नहीं आया, हमें पता नहीं चला कि ये इवेंट इतना बड़ा इवेंट हो गया। और आपके प्रेजेंस से, आपके ब्लेसिंग से, ये जितने भी यहाँ पर हमारी ऑडियंस है, इन सब की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सो टू बिगिन, थैंक यू सो मच। So to begin with this masterclass, I request you to give a standing applause and a standing ovation to Gulzar Sahab and Sudhir Mishra. प्लीज आप बैठे रहिए, प्लीज Please have a seat. Thank you. Please have a seat. प्लीज बैठे रहिए। बहुत बहुत Thank you. Over to Sudhir and over to Gulzar Sahab. वो तो हेडमास्टर हैं, कभी भी खड़ा कर लें, कभी भी डोंट गो बाय है। हाँ, ये मेरे क्लास मास्टर हैं, वो हेडमास्टर हैं, और मास्टर ये है, मेरी तो क्लास ली जा रही है। तो अब सिर्फ एक ही दरख्वास्त है आपसे, आप बहुत मुश्किल सवाल मत पूछिएगा और टेक्स्ट बुक से बाहर। नहीं, बिल्कुल टेक्स्ट बुक। मैंने आपकी जितनी समस्या ये है कि मास्टर्स तो बहुत लोगों को ऐसे आसानी से शब्द जो है लफ्ज फेंका बहुत जाता है, लेकिन सामने तो अब एक्चुअल मास्टर बैठा है, तो टेक्स्ट बुक मैंने वो नहीं पढ़ी सारी जो आपने पढ़ी है। तो मैं आपको फिल्मों तक सीमित रखूँगा अपने आप को। आप आए 61 में सिनेमा में, गराज में आप काम कर रहे थे। वो जो नौजवान था जो बिमल दा के पास गया, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में था, शैलेंद्र साहब की वजह से बिमल दा तक पहुँचे, वो एक कहानी है, वो आप ही सुनाएं। वो संपूर्ण सिंह से आपकी कभी बातचीत होती है, वो आपसे क्या कहता है? वो जो नौजवान था आज, जो आप आज यहाँ तक हैं। नहीं, वो जिसका आप नाम ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैं तो गुलजार हूँ, लेकिन वो शख्स या तो इनकम टैक्स में मिलता है या पासपोर्ट के ऑफिस में मिलता है। इसके बाहर वो कभी नजर नहीं आता और उससे कोई मुलाकात नहीं होती मेरी। और गुलजार ही के नाम से गया था वो, और गुलजार ही के नाम से पहली नौकरी मिली, और वो किस्सा भी बहुत बार सुना चुके हैं, आप सब जानते ही हैं। लेकिन वो जो नौजवान गुलजार, समझिए, उसके ख्वाब जो थे वो तो राइटिंग के थे, वो सिनेमा में तो शायद जाना भी नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल। तो मैं ये कुछ किस्मत अच्छी करवटें लेती है कभी कभी, और बस किताबों से लगाव था, किताबें ही लिखना चाहता था। और यहाँ बैठे हुए हैं रमेश तलवार,
उनके चचा सागर सरहदी वॉज माई कुलीग फ्रॉम जी कॉलेज, और वही एक सबूत रह गया कि हाँ मैं कॉलेज गया ज़रूर था वरना मेरे पास कोई और सबूत नहीं है। तो लिटरेचर का शौक़ हम दोनों को, हम दोनों ही, और हमें दोनों में से कोई भी फिल्म में आने के लिए राज़ी नहीं था, मतलब कोई ख्वाहिश नहीं थी बिल्कुल जी। सागर साहब को थिएटर से लगाव था, ड्रामे करना चाहते थे, मैं किताबें लिखना चाहता था और शायरी करना चाहता था, और उसके लिए रोज़गार के लिए एक मोटर गैरेज में काम करता था जहाँ रघुनाथ झलानी बिमला के असिस्टेंट थे, वहाँ पे मेरे साथ रूममेट की तरह रहते थे, मेरे पेन फ्रेंड थे शुरू में जी। और जब बम्बई आए तो उन्हें रहने की जगह नहीं थी तो मेरे पास रहे फिर। और उस दौर में ये स्ट्रगल के दिनों में आप सब ने देखा होगा, वो है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, आज उधर से निकल गया, 11 महीने पूरे हो गए, किसी दूसरे दोस्त के यहाँ चले गए, वहाँ से उठा उनने दरी उठा के एक और आ गए, एक उनके कोई दोस्त आए, कोई बाहर से, भाई 2 दिन के लिए आया बम्बई इंटरव्यू देने के लिए, हाँ भाई आ जाओ। तो इसी तरह हुआ करता था। उसमें बेगूसराय में एक थे दूसरे असिस्टेंट जो बेमल्ला के, वो आ गए, वो भी वहीं पर रहने लग गए मेरे साथ उसी एक कमरे में, जिसका किराया हम एक बहुत बड़े राइटर को 18 रुपये में देते थे, दैट वाज कृष्ण चंद्र। और बंगले के आउट हाउसेस थे जिसमें जी हमने एक किराया कर लिया हुआ था उनसे, और उस बंगले के ऊपर वाले फ्लोर पे साहिब ध्यान में रहते थे। तो ये माहौल, और कुंवर लॉज, और 4 बंगले में, एक को पतली सी सड़क जाती थी और 4-5 ही बंगले थे। हाई टाइड में तमाम पानी भर जाता था, रास्ते से क्रॉस करता था, पंखा उंखा था नहीं, तो गर्मियों में हम सड़क पे सो जाते थे तो समंदर आके जगाया करता था, अब चलो। तो उसी में बस देवूसैन एक दिन ले गए बिमला के पास, चलिए वो देखो शैलेंद्र का थोड़ी सी नाराज़गी हो गई, दादा के साथ तुम चलो। किससे हम सुना करते थे सारे बिमला के यहाँ क्या क्या होता है, मैं नहीं तैयार थे जाने के लिए। इप्टा में जाया करते थे, बॉम्बे यूथ कॉयर जो सलीला, एंड आई होप यू आर इंटरेस्टेड इन दो स्मॉल लिटिल। और किशोर दा की फर्स्ट वाइफ रूमा जी, और ये बॉम्बे यूथ कॉयर चलाया करते थे जी। और शिवाजी पार्क में एक PSF पंजाबी साहित्य सभा भी थी, लेकिन PWA वॉज अ कॉमन थिंग अमंग ऑल राइटर्स, एंड और एक फैशन भी था उस दौर में कम्युनिस्ट होने का, तो मोस्ट ऑफ देम वर लेफ्टिस्ट्स, और दे वर जनरली लेफ्टिस्ट, आई मीन नॉट आउट ऑफ फैशन, पर वो एक फ़ख्र लगता था, रशियन रेवोल्यूशन की किताब बगल में दबा जा रहे है ना, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और वो उसने शैलेंद्र से शिकायत की कि ये जाता नहीं, इससे इतनी बार कहा, बिमला कह रहे हैं किसी दूसरे राइटर, किसी नए राइटर को भी ले आओ बेशक, तो सचिन दा इज ऑल्सो रेडी। पर तो मुझे डांट पड़ी शैलेंद्र जी से। अब शैलेंद्र को शैलेंद्र जी कहते थे, पर उन्होंने डांट के ही जी भी उतरवा दिया था हमारा, ये तुम छल्ला काटो, बाहर निकलो, सब बासु देवू हमें शैलेंद्र बुलाते हैं वैसे ही बुलाया करो। तो उन्होंने डांट दिया, क्या समझते हो तुम, फिल्म इंडस्ट्री में सारे बहुत शौक की किताबें लेके जाओ, जाके बिमला के यहाँ लोग तरसते हैं जाने के लिए और तुम्हें नखरे सुने। उस तरह की डांट पड़ी थी, सीनियर थे हमसे, चले गए। तो उन्होंने सचिन दा के पास भेज दिया। सचिन दा के यहाँ उन्होंने धुन बताई, और उससे पहले एक छोटी सी बात हुई थी बिमला के ऑफिस में बैठे हुए कि उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड जो कुछ बताने के लिए, तो देबू ने कहा मैंने बताई है सिचुएशन। तो बिमला ने बंगला में उससे पूछा कि भद्र लोग तो की करे जान बे जे वैष्णव कविता टकी, कि वैष्णव कविता क्या होती है, इस शरीफ आदमी को क्या मालूम है। तो देबू ने कहा दादा ये बंगला बोल भी लेता है और जानता भी है, समझता भी है, मत कहिए।
And Bimala had a lovely blush every time, on many moments. A lovable man, my guru. तो उसके बाद उन्होंने सचिन दा क्या भेज दिया वहाँ ट्यून पे, तो मैं वो गाना लिख के गया, मोरा गोरा रंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे। सभी जानते हैं कि वो पहला गाना था और वो अच्छा हो गया, रिकॉर्ड हो गया। और रिकॉर्ड भी मतलब उस वक्त ये था कि सीधा दिस इज़ फॉर यू टू नो फ्रॉम वेयर द इंडस्ट्री हैज़ कम, फॉर ऑल यंगस्टर्स टू नो कि ये टेप नाम की चीज़ उस ज़माने में नहीं थी, मैग्नेट टेप की, और फिल्म पर ही रिकॉर्ड सीधा रिकॉर्ड होता था। और वही फिल्म को डेवलप करके उसका पॉजिटिव बना के तब प्रोजेक्टर पे चला के सुनते थे गाना कैसा हुआ, तो थिएटर में जाके सुना। फिर पहले पहल जब वो जी टेप आया तो एक वो बड़ा सा गुड़ुक करके घूमता था, ग्रुंडिक, जो एक ऑल इंडिया रेडियो के पास आया और एक बिमल दा लेकर आए जर्मनी से। तो बहरहाल दैट वाज द पीरियड। तो सुना साहब ठीक हो गया। और उसके बाद शैलेंद्र की थोड़ी सी सुलह हो गई, सचिन दा ने बुला लिया, तो शैलेंद्र को बुरा लगा। मुझे पूछा क्या कि मैं कुछ नहीं, वो कुर्सी पर रुमाल रख के आया हूँ आपका, उठाइए और बैठ जाइए। और कोई वजह नहीं, वो नाराजगी जी। मैं तो आना ही नहीं था। बहरहाल हुआ तो सचिन दा ने बिमल दा से कहा कि नहीं वो हमको ये नया राइटर नहीं चलेगा, हम वो एक नए राइटर के साथ हमें एक वो फिल्म लिखा अभी, अपना हाथ जगन्नाथ, मोहन जी की डायरेक्शन थी जी। वो नया राइटर के साथ हमने लिखा, वो फेल हो गया, हमको नहीं, हमको शैलेंद्र को सही। तो वो नए राइटर थे जनाब कैफी आजमी। वो सचिन दा के बोलने का ढंग इस तरह, वो नया राइटर के साथ हम लिखा होगा तो नहीं चलेगा हमको, वो नया लड़का अभी लिख के दिया। तो कैफी साहब के लिए तो ये दीज आर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दैट यू पास थ्रू लाइफ। और पर आपने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप गोरा रिकॉर्ड भी हुआ, वो फिल्म में भी था, और बिमल दा ने आपको बोला कि आप असिस्टेंट बन जाइए मेरे, ऐसा हुआ? For me that was a very emotional moment, very emotional moment. I had cried right sitting there on his table when he said this. Nobody in my family had ever said, they were against films. First of all कि ये फिल्म का, और दूसरे के कवि है, लिखना चाहता है, करेगा क्या? तो he said कि तुम असिस्टेंट हो जाओ मेरे साथ, हम एक नया पिक्चर शुरू करता है, बट डोंट गो बैक टू दैट गैरेज एंड वेस्ट योर लाइफ, कम हियर, यू आर नॉट मेंट फॉर। एंड दैट मेड मी क्राई। वो गला रुंध जाता है अभी भी, याद करके भी गला भर आता है। बस फ्रॉम देयर केम दिस टर्निंग पॉइंट। एक तो फिल्मों में नहीं आना था, फिर गाने नहीं लिखने थे, ये जो वहीं से पहचान मिली, वहीं से वही दैट बिकेम माय फाउंडेशन। तो यू नेवर नो दोस ट्विस्ट्स ऑफ फेट एंड लाइफ। बहुत सारे नए लोग हैं और हम सब आपसे अभी भी सीखते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो तब्दीली होती है दिमागी, जो एक एब्स्ट्रैक्ट मीडियम से एक राइटर शेर व शायरी से एक कॉन्क्रीट मीडियम सिनेमा में आने की जो एक तब्दीली है, जो जिस तरह से वो आपने कैसे पार की? वो आपको बिमल दा के साथ काम करते करते आया कि क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप कभी डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, आप फिल्मों में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जो एक आप में एक फिल्म मेकर तो कहीं बसा हुआ था, जो बाद में आपने इतनी फिल्में बनाई और इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई। ये जो तब्दीली है, ये क्या है? एक राइटर को अगर आप बोलें कि मैं इस मीडियम से इस मीडियम में आया, तो नज़रिया मेरा देखने का, जब मैं इस मीडियम में रहता हूँ तो इस तरह से होता है, कुछ ऐसा होता है कि एक ही आप तरह सोचते हैं, कुछ चीज़ें फिल्म के लायक होती हैं, कुछ कहानी के लायक होती हैं, कुछ शायरी के लायक होती हैं।
नहीं, मेरा ख्याल है कि नॉट दैट यू आर मेंट फॉर दिस मीडियम और ये था आपके अंदर, मतलब वो कहने का ढंग अच्छा है, वो जुमले अच्छे हैं, हाँ, लेकिन ये कि यू लर्न एज यू ट्रेवल अलोंग। जैसे जैसे आप चल के जाते हैं, आप एनवायरनमेंट्स में भी कहीं छाँव देख के रुक जाते हैं, कहीं धूप देख के चल भी देते हैं, तो सीखने लग गए, अच्छा लगा, क्योंकि दिस मीडियम एनकम्प्रेसेस सो मेनी आर्ट्स इन इट। इसके अंदर इतने सारे फाइन आर्ट की जगह है इसमें, और जाहिर है कि राइटर के लिए तो जगह थी ही जी, लेकिन इसका असर ये नहीं हुआ कि मैंने लिखना छोड़ दिया जी, वही किताब मेरे साथ रही। किताब आज भी मुझे उतना ही फैसिनेट करती है, एंड इफ़ आई मे पुट इट सो विद योर परमिशन, कि मैं 28 साल की उम्र में ज्वाइन किया जी, अभी बताया था उन्होंने जी, अब उसका उल्टा है, मैं 82 का हूँ, है ना बाबू, इस तरह से उर्दू में बोलता है जी, तो उसमें सीखते भी रहे, लेकिन माई पैशन फॉर बुक्स रिमेन्ड ऑल अलोंग, और इतने 82 वर्ष की उम्र पर आकर आई एम बैक इन टू माई बुक्स। इट्स दैट पैशन, वही पैशन है, क्योंकि दैट वॉज माई फर्स्ट पैशन, वो इट हैज ब्रॉट मी बैक। वो वापस वहीं, सागर साहब भी चले गए, वापस थिएटर, वापस टू हिज राइटिंग, तो वो कहीं आई थिंक द फर्स्ट लव वो रिमेन्ड, बट आई डिड लर्न वेरी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली वॉट एवर, और विमला के साथ तो सीखने का बहुत मौका था, बिकॉज द मास्टर वाज प्रेजेंट। और कन्फेशन कि इन माई फिल्म्स आई एम नॉट अ ग्रेट cinematographer, I'm not a great director, I was a writer first, और सब बात कह के करता था। मतलब डायरेक्टर का है ना, आज शॉर्ट से आप बात करते हैं, विजुअल से बात करते हैं मीडियम की, दैट्स द मीडियम, लेकिन राइटर, माई अर्ली फिल्म्स आर वेरी वर्बॉस व्हेन आई लुक बैक, बातें बहुत है, डायलॉग बहुत है, और कुछ नहीं तो कह तो दो ना, क्या जाता है, वो एटीट्यूड जो हालांकि आज भी करते हैं कि आप पिस्तौल रख के कहते हैं गोली मार दूंगा भाई, और क्या करोगे पिस्तौल है ना, तो गोली मार दूंगा, कहने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि आपके अंदर वो दोनों मतलब नॉर्मली एक डायरेक्टर और राइटर का रिश्ता है, तो ये दोनों जब बातचीत करते हैं, आपके केस में तो खुद ही बातचीत करते हैं आप एक दूसरे, आप अक्सर आपने दूसरों के लिए लिखा भी है, अक्सर आपने स्क्रीन प्ले भी रखा है, तो इस रिश्ते को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आप, ये जो राइटर डायरेक्टर का रिश्ता है, आपके भीतर भी ये डायलॉग है और आपका दूसरों से भी ये डायलॉग हुआ है जी, हाँ, और आपने बहुत सारे नए लोगों के साथ भी काम किया, बहुत आपके करियर में आपने स्क्रीन प्लेस बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के साथ भी लिखा है, शेखर कपूर वगैरह, मेरे को 13-14 डायरेक्टर्स हैं जिनकी पहली फिल्म है, बड़े डायरेक्टर हुए जिनके साथ पहली फिल्म लिखी है, बहुत सारे, लेकिन ये कि ये रिश्ते की जहाँ आप बात पूछ रहे हैं, और आपके भाई हैं कोई? थे, एक है, हाँ, पिताजी, हाँ, वाइफ है ना, थी शादी। आप ये रिश्ते सारे कैसे निभा लेते अकेले आदमी? मैं इसी तरह मैं राइटर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं गाना भी लिख लेता हूँ, आता हूँ, ये रिश्ते निभाता है आदमी, सीख रहा है तो कर रहा है, वो सारे अपनी अपनी जगह पर हैं, और उनसे बचाना यही पड़ता है कि ऊपर दूसरा हावी ना हो, हाँ, है ना, तो वो भी सीखने की बात है कि जो बात आप बेटी से कहते हैं वो आप बेटे से नहीं कहते, और जो बात अपने बच्चों से कहते हैं वो आप पिताजी से भी नहीं कहते, तो ये तो बचाना तो पड़ता है, तो निभा लिया है और सीखा है, जाहिर है कितने सारे, और आई एम जैक ऑफ मैनी, जब मास्टर ऑफ नन, इन स्पाइट ऑफ अ क्लास। कुछ बातें गुलजार साहब, ये जैसे अभी लास्ट इनका सेंटेंस है, ये हम इग्नोर करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, हम उसको इग्नोर करते रहेंगे, हाँ? क्योंकि वो ठीक है, चलिए, नहीं वो फॉर्म जो है आपने, जैसे हम जब आए थे सिनेमा में, तो एक बड़ा एक आशुतोष was present at that time, there was this whole distinction about this kind of cinema, that kind of cinema,
तो जैसे जैसे सिनेमा हमारा बढ़ रहा है, आज मॉडर्न होता जा रहा है, देयर आर डिग्रीज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. हम एक फॉर्म अपनाते जा रहे हैं, तो व्हाट इज न्यू इज मोर वेस्टर्न इन अ सेंस. तो उसमें कहीं जो हमारा हिंदी फिल्म फॉर्म था, उसका इजाद जहाँ से भी हुआ हो, पारसी थिएटर से हुआ हो, फोक म्यूजिक से हुआ हो, संस्कृत थिएटर, दोज आर एकेडमिक थिंग्स, बट वो द ग्रेट डायरेक्टर्स यूज दैट टू क्रिएट मैग्निफिसेंट फिल्म्स. तो वो फॉर्म जो है उसमें गाने भी हैं, जैसे आप बोल रहे हो, शायरी भी है, डायलॉग भी है, सिनेमा भी है, कैमरा भी है. तो वो फॉर्म जो जा रहा है कहीं, उसके एब्सेंस आपको खटकता है कहीं कहीं. आप जो एक इंडियन सिनेमा का एक बात थी कि हिंदुस्तानी सिनेमा की एक पहचान थी, वो एक तरह का सिनेमा था, उसको थोड़ा लुप्त होते हुए देखते हो, आपको कुछ लगता है कि ये नेसेसरी ट्रांजिशन है? नहीं, ये थोड़ी सी बात वो जो आई कैन ओनली डू अ लाउड थिंकिंग विद यू. ऐसा नहीं कि मैं जानता ही हूँ इसके कारण और इसकी वजह और ये इसकी नॉलेज है. लेकिन ये ज़रूर है कि हम तकरीबन पैरेलल हैं बिल्कुल. 100 साल 125 साल की अगर उम्र है सिनेमा की, तो हिंदुस्तानी सिनेमा भी वैसे ही शुरू हुआ जी. और तकरीबन उतनी ही उम्र है. और जैसा कि मैं देख सकता हूँ या जैसे देखा या पढ़ा कि सबसे पहले पहल जब हमारे यहाँ हिंदुस्तानी सिनेमा फिल्में बननी शुरू हुई हैं, तो वी ड्रू फ्रॉम माइथोलॉजी, नौटंकी से. जो हमारे पास मटेरियल था वहाँ से हमने फिल्मों का मवाद जमा करना शुरू किया. और वो टोटली हिंदुस्तानी नौटंकी की तरह ही. मतलब उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ जिसमें कोई 117 गाने थे और कुछ एक जिसमें 80-70 गाने थे, जो इंद्र सभा जिसमें गाने इतने थे. तो उस तरह से ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ सुनाने की, कहानी सुनाने की रही है, जो वेस्ट में उनकी तरह हो गई. उनके यहाँ शायद म्यूजिकल्स उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से हमारे यहाँ बनी हैं और जितनी थी. और वो फॉर्म अपने आप में एक शक्ल लेती गई. हमारे यहाँ म्यूज़िक का हिस्सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप सुबह, स्पेशली कमिंग फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स जी, कि सुबह सुबह जो दूध वाला आता है ना, वो भी गाता हुआ आता है. माँ को देखते हैं वो पूजा कर रही है सारी और बिलो भी रही है, उठ के ये काम भी कर रही है और भजन गा रही है, साथ साथ वो चल रही है. आपके सुबह की पूजा के अंदर म्यूज़िक शामिल है, जो मॉर्निंग में वहाँ से शामिल होता है. मलाई कुल्फ़ी बेचने वाला वो भी गा के आता है. जामुन लो जामुन वो भी गाता है. जितने खोंचे वाले आते हैं, लो हापुड़ के पापुड़, वो गाते हैं. ये म्यूज़िक इज़ इनहेरेंट इन यू. म्यूज़िक आपका हिस्सा है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है. तो इसलिए वो फॉर्म हमारे यहाँ उसी तरह से पली और वो आज तक है, आज तक वैसे ही चल रही है. लेकिन ये कि सिर्फ वही फॉर्म भी नहीं है, हाँ, और फॉर्म्स भी होते हैं. कोई उसकी बंधी हुई फॉर्म नहीं है कि सिनेमा इसी तरह फॉर्म में आएगा. इन्फ्लुएंसेस की बात है, जहाँ तक बाहर के इन्फ्लुएंस की, वो आते रहे. हमारे हमने सबसे पहले यहाँ बंगाल में देखा कि साहब धोती पहनी है, कुर्ता ऊपर कमीज़ पहनी है, उसके ऊपर टाई लगाई है और कोट पहना है. आपने देखी हैं ये तस्वीरें हमारे यहाँ अर्ली फिल्म ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद के जो हमारे जो अफसर बने हैं, तो धोती भी है, कमीज भी है, ऊपर टाई भी है और कोट भी है, और बड़े डिग्निफाइड लगते हैं. ऐसा नहीं कि वो ख़राब लगते हों. उनकी तस्वीरें आज भी देखिए. तो ये इन्फ्लुएंसेस आते रहे, अपनाते रहे. उसमें जब बाहर से ये सिनेमा आना शुरू हुआ तो उनकी फॉर्म्स अलग अलग आई. तो आप अडॉप्ट तो करते हैं वो सारे. मैं बल्कि शुरू में जो सिनेमा आया है, आई होप माई नॉलेज इज राइट, गलती हो तो कहीं या तो ठीक कर लीजिएगा, ये भी बात इग्नोर करेगा कि साइलेंट पीरियड में भी जिस वक्त आप पिट के अंदर बैठ के म्यूजिक बजाते थे, जी जी, वो साइलेंट तो था ही नहीं कभी, वो एक म्यूजिक तो हमेशा था. उतना शोर तो हमने कभी भी आज भी नहीं होता जी, इतनी साउंड आज भी नहीं होती जितनी उस वक्त थी. उसी के बीच में वो सोडा लेमन वो बीड़ी पान बीड़ी वाला वो भी चलते थे ऑडियंस में. जी जी जी, और फिल्म भी चल रही है और उसके साथ पेटी पे मास्टर जी बजा भी रहे हैं, है ना. वो था उसमें. और उसका कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं था.
जो फिल्म पे चल रहा है उसके साथ। उसी में वो थिएटर भी थे जहाँ अंग्रेजी फिल्में आके चलने लगती थी, वहाँ पे पियानो हुआ करता था ज़्यादा, वायलिन हुआ करती थी, और ब्लू लगून जैसे गानों की फरमाइशें जाया करती थी। हिंदी सिनेमा में ये रुखसती वाली वो बंदिश फिर से सुना दो, बंदिश जाती थी, सिनेमा अपनी जगह चल रहा है, और उसमें वो नीचे पेटी वाला वो भी कह रहा है मार साले को, मार साले को, मार तेरा क्या बाप लगे मार, और वो उसके साथ डायलॉग भी बोल रहा है। तो बहुत शोर गुल वाली फिल्में थी जी। और उसमें दोनों हिस्से थे। यहाँ से वो जहाँ वो भेजते थे ना फरमाइश के ये रुखसती वाले, तो वहाँ कहीं एक दूसरा एक साथ की पगडंडी की बात कर रहा हूँ मैं, वापस आपके रास्ते पे आ जाऊँगा। जी जी। कि वो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था और एग्जीबिटर था, वो साइकिल पे डिब्बे बांध के लाता था डिस्ट्रीब्यूटर जिसने राइट लिया, और डिब्बे ला के एक हफ्ता चलाना, उसके बाद वापस कर आना, दूसरे लेकर आना। उसने कहीं उससे कहा मास्टर से, यार ये बात सुन, ये जो रुखसती वाला है ना, इस पे बहुत लोग आते हैं सिर्फ वही गाना देखने के लिए और चले जाते हैं। तो उसका ज़रा बढ़ा ना लंबा। सर जी वो तो इतना ही है, वो एक मुखड़ा एक अंतरा, इसके तो फोक है, उसमें लोकगीत है, इतना ही है। कहने लगे तो दो और लिखवा ले, वो बैठा है वो तेरा कवि, उसको कहो मुंशी को, वो लिख के देगा दो। वहाँ से मेरी नौकरी शुरू होती है गाने लिखने की। Writers, poets were engaged to write those songs, extend those folk songs जो लोगों को पसंद आ रहे हैं उनके ऊपर वो चले। बहरहाल ये इन्फ्लुएंसेस आते रहे जी, और वो कहीं ना कहीं आप जैसे अपने ड्रेस को, आज भी मेरा ख्याल है मैंने हिंदुस्तानी ज़्यादा पहना हुआ आपसे जी, है ना जी जी, तो वो इन्फ्लुएंसेस तो हम एक्सेप्ट करते रहे, और हिंदुस्तान वैसे भी सभ्यता में भी, हमारे कल्चर में भी, हमारी तहजीब में भी, वी हैव एक्सेप्टेड अ लॉट एंड डिस्कार्डेड अ लॉट ऑल्सो। जो अपना के समो जाता है हमारे अंदर वो रहता है और देर तक रहता है और चलता रहता है। उसकी अपनी एक उम्र होती है हर एक चीज़ की, एपिटाइट की भी एक उम्र जी, जी, वो जी, अपने आप निकल भी जाता है। तो जिसे आप कहते हैं कि वो वेस्टर्न हो गया, मुझे वो वेस्टर्न नहीं लगता। वेस्ट के पास परहैप्स इक्विपमेंट हमसे आगे आगे थे, लेकिन थॉट सब्जेक्ट्स वो हम कहीं भी पीछे नहीं थे, क्योंकि हमारे पास 5000 पुरानी सभ्यता के सब्जेक्ट्स हैं सारे। आपके पास महाभारत, रामायण, पंचतंत्र सब चला आ रहा है, तो काफ़ी है आपके पास मटेरियल। आज भी जब हम फिल्म बनाते हैं तो इट इज़ नॉट द फिल्म, इट्स नॉट द फॉर्म, इट्स द कंटेंट विच मेक्स इट इंडियन और नॉट इंडियन। It is the content which makes it westernized और totally Indian। आप कह सकते हैं कि हम टेक्निक में वेस्ट के साथ साथ आ गए हैं। एक ख्याल, पता नहीं आप मुझसे मुत्तफिक हों कि नहीं हों, एक छोटी सी बात जो मुझे हमेशा महसूस होती है कि हम वो नौटंकी और महाभारत से वैसे निकले नहीं, है ना, उसी तरह से, लेकिन इंडिविजुअली निकले। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, बहुत से ब्राइट डायरेक्टर्स, ब्रिलियंट डायरेक्टर्स ने कुछ उस तरह की फिल्में बना ली, जिसमें मास्टर हमारे रे साहब जैसे सत्यजीत रे मेड फिल्म्स टोटली लाइक लिटरेचर। इट्स एज गुड एज रीडिंग अ क्लासिक बुक, अ क्लासिक नॉवेल, अ क्लासिक शॉर्ट स्टोरी। अलग अलग एक्सपीरियंस है, चाहे आप किताब पढ़िए, पातेर पंचाली, सिर्फ एक ही तरह का सिनेमा नहीं है कि जिसे हम एक ही लफ्ज़ में, एक ही सेंटेंस में हाँक लें कि नहीं ये पूरा हिंदुस्तानी सिनेमा जो ये है। उसमें बहुत सी गलियां हैं, बहुत से गलवाड़े हैं, और बहुत सी फॉर्म्स हैं, जैसे हर एक फाइन आर्ट में। जी हाँ बिल्कुल, पेंटिंग में भी हैं, म्यूजिक में भी हैं, किताबों में भी हैं। लेकिन ये जो एक गली है जिसमें आप जिस ट्रेडिशन में आप आए, उसमें जो गाना होता है, वो जब आप लिखते हैं, और वो गाना, जैसे आजकल बहुत सारी बातें होती कि एक आर्बिट्रेरीनेस है शब्दों में भी, सिचुएशन में भी, कहीं वो फिल्म से जुड़ा नहीं होता है। तो आपके हिसाब से गाना कब होता है फिल्म में, कैसे नेचुरली वो एक चीज सीन से एक गीत की ओर जब जाते हैं, तो आपका इंस्टिंक्ट है वो ये किस वक्त स्क्रिप्ट में आप सोचते हैं, क्योंकि आप तो पूरा सोचते हैं। नहीं, वो उसमें कुछ आपकी पसंद भी शामिल है कि
राम लक्ष्मण निकल के चले गए और पेटी लिए हुए मास्टर आया और उसने कहा अर्थात, और कह के गाना शुरू किया। अर्थात क्या था, वो जो श्लोक पढ़ के गए, है ना। मुझे वो अर्थात कहने का बड़ा शौक था। वाह, ये गाना लगा लो, बजाय गाने से बच के निकलने के, निकल सकता था। मैं गाना अच्छा लगता था, सो पसंद की बात है। तो मैं गाने से होके गुजरूंगा ना, और गाने में मैं कोई कहानी का हिस्सा बना लूँगा या कोई मिसाल दे दूँगा। जैसे आप सिमिली इस्तेमाल कर लेते हैं पोइट्री में, तो आई यूज्ड सॉन्ग्स लाइक मेटाफर्स एंड सिमिलीज इन माय फिल्म्स व्हिच आई ट्राइड। अब वो कहाँ तक कामयाब हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कहीं कमेंट करना नहीं, को लाइट हार्ट। एक तो 3 घंटे की फिल्म बनाते थे और बड़े लंबी बनाते थे। तब आदमी को 3 घंटे तक किसी एक कहानी सुनाना, तो आज बच्चा भी बोर हो जाता है ना। तो उसके लिए अच्छा यहाँ से गुजरो, चलो यहाँ से इतनी देर जरा से संभाल लो, मैं अगला सीक्वेंस शुरू करने से पहले। आपको एवं भी बहुत पसंद है ना? जी हाँ, एवं तो एवं आप एवं तो बनाई फिल्म ने सारी। वो हालचाल ठीक ठाक में भी है। और अक्सर आप ऐसा कहा जाता है कि आपके उसमें एक जैसे हिचकॉक की एक वो होती है। एक तो ये है कि हर एक हिंदुस्तानी कम से कम 2-3 ज़बानें बोलता है और 5 सुनता रोज। आप जरा गौर करके देखिए जी। 2-3 तो बोलता है, समझता है, और 2-3 सुनता है जो उसको नहीं आती, और वो भी। और फिर आप सिर्फ एक ही ज़बान वाले कैरेक्टर से भी नहीं मिलते। तो मैं अगर किसी कैरेक्टर को, मौलाना को आधा वर्ष कह रहा हूँ, तो मैं दूसरे को एवं ही वाला भी लगा लेता हूँ कि ये कैरेक्टर तो एवं बोल सकता है ना, तो उसको कैरेक्टर। तो मुझे उस ज़बान का भी मज़ा आता है, क्योंकि मैं जिस तरह से आया हूँ उस तरफ से, और होते होते यहाँ तक पहुँचे, बहुत ज़बानों के रस लिए मैंने। और मैं आई लव द लैंग्वेजेस ऑफ माई कंट्री, लवली लैंग्वेजेस। एंड इमेजिन देर आर 14 से शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, आज 24 हैं, साहित्य अकेडमी में 28 हैं विद स्क्रिप्ट। आई हैव ट्रांसलेटेड 32 लैंग्वेजेस सर, एंड आई हैव ट्रांसलेटेड मोर देन 270 पोइट्स, एंड आई एम कमिंग विद दैट वॉल्यूम नेक्स्ट ईयर एट द एंड। A poem a day. I'll give you a poem every day from every language, from all the languages of India, a poem every day from different languages. And our recent times, our जिसे कहते हैं आज की शायरी, not masters, not इकबाल, not Tagore, not गालिब, आज की शायरी जो इस वक्त हो रही है, I'll reach that poetry to you from all these languages in that book, जो कि recent हमारी जो इस वक्त की जो शायरी है। एंड द मोस्ट डायनामिक पोइट्री विच इज़ कमिंग टुडे इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। यू विल बी सरप्राइज, फ्रॉम खासी, फ्रॉम मणिपुरी, फ्रॉम आदि। दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, एंड आई हैव डन एंड कलेक्टेड। वो मज़ा कहीं ना कहीं फिल्मों में मेरे साथ रहा। ये जो अब कर रहा हूँ, इसका मज़ा कहीं उसकी शुरुआत कहीं वहाँ से है, जहाँ से वो हर ज़बान का कहीं ना कहीं मज़ा आ जाता था, लगा लेता था मैं। पांचता बातें टाट का बैंगन पोड़, है ना, आंकी चली बांकी चली, चौरंगी में झांकी चली, टाट का बैंगन पोड़ा। तो बंगला भी लाइनें लगाई हैं मैंने उसमें, और मैं मराठी की लाइनें भी लगाई हैं, और पंजाबी की लाइनें भी लगाई हैं, पंजाबी के गाने भी गाए। तो अच्छा लगता है इसलिए। नहीं, आपकी फिल्मों में स्ट्रक्चरली, अब ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, और ये आप उसको इस गली में ना भी जाना चाहें तो आप डांट दें, लेकिन डांट दें आपको, मजाल है किसी की। वो नहीं, आप वैसे नहीं डांटता कोई ज़्यादा मुझे, लेकिन आप कर सकते। नहीं, मैं किसी और को भी नहीं करना, ये बेफिक्र है। वो नहीं, ये जो आपने फिल्में बनाई अक्सर, तो एक अचानक को अगर हम लें, तो अचानक में जो एक कॉन्स्टेंटली एक नैरेटिव का, जिसको आज नॉन लीनियर बहुत कहते हैं, या नैरेटिव कहानी वहाँ से नहीं शुरू होती जहाँ से शुरू होती है, बल्कि कहीं और शुरू होती है, आगे जाती है, पीछे। तो आपने अचानक में, और अक्सर जो है एक
फ्लैशबैक का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है कहानी में, उसको उसकी वजह या आपको आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये डिसीजन कैसे होता है इंस्टिंक्टिव कि इसको ये कहानी मुझसे कह रही है कि ऐसे मुझे सुनाओ? एक बड़ा जायज़ सवाल है आपका कि कहानी सुनाने के ढंग होते हैं अलग अलग जी। और स्पॉन्टेनियस जिस तरह से कहानी, और किसी एक तो ये कि कहानी को ऐसे सिरे से पकड़ूं जिससे मैं पूरी कहानी एक ही बार में उठा सकूं, ये कोशिश होती है जब मैं स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि शुरू से और फिर वो इस तरह से पैदा हुआ और उसके माँ बाप यूँ थे और फिर जब गए तो फिर ये छूट गया, फिर खेत छूट गए, फिर वो शहर आ गए। तो वो मुझे कहानी सुनाते हुए बहुत अट्रैक्ट नहीं करता था, बोरिंग लगता था। तो जिस तरह से मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ वो, क्योंकि रियाज वो लिखने का भी जारी था, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और शॉर्ट स्टोरी जिस तरह से लिखता हूँ उसी तरह से कहानी कहने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें तो मेरी फिल्मों में नॉवेल कम है, नॉवेल हैं भी नहीं, सारी शॉर्ट स्टोरीज ही की शक्ल में हैं। जी। तो कहानी सुनाते हुए मुझे लगता था, कहानी सुनाते हुए अपने आप आ जाता था कि इसकी बैकग्राउंड ये थी, दैट इज इसलिए ये किया, इसकी बैकग्राउंड ये थी इसलिए किया। तो वो जो फ्लैशबैक मेरे जहन में आता था मैं वो उसी जगह रखता था, बजाय इसके कि उससे तैयार करके लाता यहाँ तक। तो ये कहानी सुनाने का अपना एक ढंग होता है जिसमें मैंने फ्लैशबैक्स बड़ी स्पॉन्टेनिटी के साथ, बड़ी बस वो जिस तरह इंस्टिंक्टिवली जिस तरह से आया तो वैसे करता रहा। और मुझे वो कोई टेक्निक डालने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी तो मेरा खुद एक कहानी सुनाने का अंदाज बन गया। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक ही कहानी कछुए और खरगोश की भी नानी एक और तरह से सुनाती थी, दादा एक और तरह से सुनाते थे, जी जी है ना? बिल्कुल। तो उनके कैच पॉइंट्स अपने अपने होते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस हैं कि वो कैसे सुनाते हैं और वो किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं वो, और नानी एक और तरह से सुनाती है। तो या कोई भी शख्स एक ही कहानी अगर दो शख्स सुनाएंगे तो वो अपनी अपनी तरह से सुनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके अपने जहन का एक कैच पॉइंट होता है। तो मुझे यूँ लगता था आई कैन कैच यू ऑन दिस मोमेंट फ्रॉम नाउ, सुनो मैं तुम्हें कहानी अपनी तरह सुनाता हूँ, तो ये लगता था जी। और फिर उसको ड्रामेटाइज करने के लिए एक तो मुझे डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उतना ही फ्लैशबैक इस्तेमाल कर लूँ तो आई कैन ड्रामेटिकली कम बैक टू दिस पॉइंट। तो ये एक तरकीब बन गई थी मेरी, और आपका कहना सही है। और अचानक जैसी फिल्म ख़ास तौर पे अब्बास साहब की कहानी थी, ख्वाजा अवध अब्बास, and I met a great producer who gave me the first break also, Mr. N.C. Sippy, जिन्होंने ऋषिदा के साथ भी उनके साथ पार्टनर थे। और सिप्पी साहब में एक बड़ी खूबसूरत बात थी, N.C. Sippy, आई मस्ट पे माई ट्रिब्यूट टू हिम, कि बहुत बड़े इंस्टिंक्ट के साथ ऑनेस्ट। और मैंने जिस वक्त ये उन्हें कहानी सुनाई, उनके साहबजादे हैं रोमू सिप्पी को, तो रोमू को पसंद आई कहानी, तो मैं कि इसको मैं लिख रहा हूँ, इसकी देखो शक्ल बनाता हूँ। तो कहानी का आइडिया उसने बता दिया फादर को, मैंने बहरहाल कहानी लिखी। हमने एक प्रोसेस था बीच में जिस तरह से जाके अब्बास साहब से राइट्स लिए जी। दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग स्मॉल इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, बट ये खुशगवार इंसिडेंट, कोई बहुत ऐसा नहीं, अच्छी बात थी। तो बहरहाल ये ले लिए, उसके बनाई। तो मैंने जिस तरह से सिप्पी साहब को सुनाई, सुबह 4 बजे अपॉइंटमेंट रखते थे हमेशा सुबह। ही यूज्ड टू गेट अप वेरी अर्ली, उठ के खुद चाय बनाते थे खुद अपने, और कहते थे 4 बजे आ जाओ। रात को बहुत जल्दी सो जाते थे। तो सुनाई उन्हें, तो सुनाने के बाद आई रिमेंबर हिज सेंटेंस व्हेन ही सेड कि तुम ये फीते में बांध के मुझे दे दो और ये फिल्म बना के दे दो, बस ऐसी ही चाहिए मुझे। तो मैं कहा सिप्पी साहब इसमें गाने नहीं हैं, और अभी तक कोई सिचुएशन मेरे से बनी नहीं इसमें, लेकिन छोटी है फिल्म की लेंथ के हिसाब से बहुत छोटी है। कहने लगे तुम बस ये इसी तरह से बांध के दे दो और यही फिल्म मैं इससे मैच कर ले लूँगा।
मैं कहा पर छोटी लेंथ की छोटी कोई बात नहीं, हम इंटरवल के बाद रिलीज़ करेंगे जैसी अंग्रेज़ी फिल्में होती हैं। अंग्रेज़ी फिल्में पहले दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं, उसके बाद इंटरवल के बाद मेन फीचर, तो उसी तरह से करेंगे, पर तुम कुछ और करना नहीं ऐसे। हैट्स ऑफ टू दैट मैन, मैंने बनाई वैसे। तो आपके रीगल में उसी तरह रिलीज की। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती थी, उससे पहले ऋषिदा की एक लंबी डॉक्यूमेंट्री थी, वो चलती थी, और उसके बाद इंटरवल होता था। इंटरवल के बाद एट वन रो दिस, एंड ही डिड दैट। इट्स अ मैटर ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन, जी हाँ, जी हाँ। दैट वाज अ ग्रेट प्रोड्यूसर आई मेट। आपके और भी कोलैबोरेशंस बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। कभी कभी जीतू जी हैं, जीतू जी के साथ एक आपने 3 फिल्में की हैं। तो जब एक्टर और प्रोड्यूसर एक ही होता है तो क्या होता है? बड़ा अच्छा तजुर्बा होता है वैसे। अगर आदमी बिहेव वेल करे तो खुद बिहेव अच्छा करे तो वो भी अच्छा बिहेव करते हैं। जी, माय रिलेशंस विद हिम वर वेरी वेरी गुड जी। और जो नहीं, वो तो था, आपने 3 फिल्में की साथ में, तीन साथ तो में। जी हाँ, हाँ, वरना पहली फिल्म के बाद निकाल दिया निकाल, जाता, हाँ, है ना? वरना काहे को दूसरी बनाते। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको सेल्समैनशिप तो करनी पड़ती है ना अपने सीन की, है ना? थोड़ी सी एक अच्छी लाइन बेचने के लिए थिएटर में भी होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छी लाइन बेचने के लिए, गाने की एक अच्छी लाइन बेचने के लिए। फिर आप बहुत इधर से उधर से लगाते जीतू हैं। जी कह रहे थे कि आप कभी ना नहीं कहते, लेकिन फिर आप अपनी मर्जी का हाँ करवा लेते हैं दूसरों नहीं से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे ये ला के एक वो बनाया, दिखाया, ये स्क्रीन का पेज जाएगा, स्क्रीन में फुल पेज जाया करता था स्क्रीन मैगजीन में, तो हाँ बहुत अच्छा है। इसके फॉन्ट्स अगर दूसरे ढूंढ लें कुछ, क्यों ये गैप लगता है, हाँ, तो मैं कह लूँगी हाँ ये कर लेंगे। तो वो बैठे हुए थे डिज़ाइनर भी साथ ही में थे, मैं इन दोनों को इस तरफ ले रहा हूँ, ये स्पेस बहुत अच्छी लगेगी। क्यों रवि बुलाता था मैं जीतू को, उनका ओरिजिनल नाम रवि है। तो मैं कहा रवि ये इसको ले लें, ये स्पेस बहुत अच्छी लगेगी। हाँ बहुत अच्छी लगेगी, और छोटा कर दें ये नीचे, इतना बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम क्या ज़रूरत है, छोटा उसके साथ मैचिंग। हाँ कोई ज़रूरत नहीं करे। तो सारा करने के बाद उसने जब कहा, कहने लगा पर इसमें रहा क्या जो मैंने बनाया था। तो मैं कह रवि पर ये तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, से अच्छा तो लग रहा है, पर तुम जो कह रहे थे बहुत अच्छा, तो वो था क्या। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ बट सेल्समैनशिप। नहीं नहीं, हैव टू डू आवर पार्ट। बच्चों के साथ भी तो करते हैं हाँ, ना। और एज ए टेक्निक ऑफ डायरेक्शन, और या आप क्योंकि एक सेट पे एक डायरेक्टर जो होता है वो सिर्फ निर्देशन नहीं कर रहा होता, कुछ फादर फिगर सा भी होता है, कुछ साइकेट्रिस्ट भी होता है, कुछ समस्याएं भी सुलझा रहा होता है, थोड़ा प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। कहते हैं कैप्टन ऑफ ए शिप, बट हमको तो पता है कि और भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं डायरेक्टर की। तो जब आप एक्टरों के साथ काम करते हैं, तो जब इंस्टीट्यूट से मैं आया था, इंस्टीट्यूट के लड़के बहुत कहते थे कि हैंडल एक्टर्स, वी हैंडल एक्टर्स। तो हमेशा कहते थे कोई हैंडल तो है नहीं, यू वर्क विद एक्टर्स, यू नो। तो आप जब एक्टरों के साथ काम करते हैं तो आप का क्या रिश्ता है, वो किस कहाँ तक उनकी बात या किस तरह का इंटरेक्शन है पर्टिकुलरली आप? देखिए एक तो ये है कि वी आर ऑल वन टीम जी, टू वर्क फॉर, वी आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम फिल्म। या कोई अपनी अलग अलग फिल्म नहीं बना रहा है उसके अंदर, और ये सिवाय डायरेक्टर के कोई नहीं समझा सकता कि देखिए आई एम डूइंग, इफ आई आस्क यू कि कैमरा इधर ला के रख दो, तो यू नो इससे क्या होगा, यू हैव टू कन्विंस द कैमरामैन, एंड यू शुड बी रेडी टू रिसीव व्हेन द कैमरामैन टेल यू, देखिए ये इस तरफ बैकलाइट बहुत अच्छी लग रही है, इस तरफ यूं कंपोज कर लीजिए, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू रिमेन ओपन विद इट। जी हाँ, बट कैप्टन सिर्फ इसलिए कहते हैं उसे कि चलाने वाला कोई और है शिप का, जी, ऊपर सफाई करने वाला कुछ और है, घुमाने वाला कुछ और है, नीचे के ऑयलिंग के लिए कोई और है, पेट्रोल वो फ्यूल देखने के लिए कोई और है, करता कुछ नहीं है डायरेक्टर, लेकिन एक एक को उसका काम जरूर समझा देता है। देखो जाना इधर है,
And in case of a storm, in case of a reaching somewhere, there's a rock, how to turn from here. वो सिर्फ उसी को मालूम है कि लैंड कहाँ पे करना है जाके. And his responsibility is only that कि उनको सबको हैंडल कर ले, वो जितने लोग हैं उसको हैंडल करना, because he is handling to one concept which is in his mind. ज़रूरी नहीं कि हर आदमी वो वही फिगर देख रहा है जो आप देख रहे हैं. आपने उन्हें स्क्रिप्ट भी दे दिया, आपने उन्हें समझा भी दिया, बट एग्जैक्ट दैट इमेज, दैट place where you have to finally dock the ship, that only the director knows. अब वो कैसे उसमें जाके डॉक होगा वो उन्होंने नहीं मालूम, उनका काम वो नहीं है. लेकिन उनके साथ शेयर करना, और अगर आप उन्हें समझा दें कि देखिए ये इस तरफ से एक रॉक करता है, तो वो ही विल टेल यू कि नहीं नहीं ये बाय द टाइम वी रीच देयर शिप विल बी ऑन दिस साइड. ही विल ऑल्सो. तो इट हैज़ टू बी वन टीम, बट देन इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम. वो टीम आपकी हरी भाई संजीव कुमार के साथ बहुत फिल्मों में बहुत खूबसूरत से बनी हुआ, ऐसा लगता था कहीं. क्यों संजीव को मैं फिल्मों में आने से पहले से, वो भी फिल्मों में आने से पहले मुझे जानते थे. वी हैड बीन इन भोलाबाई इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ये रिहर्सल्स किया करते थे अपने गुजराती प्लेस में, INT शायद, इंडियन नेशनल थिएटर है ना, उसकी वो करते थे. और वहाँ हम PD शिनॉय के साथ एक प्ले कर रहे थे, जो एक्टर्स ट्रेनिंग का एक फिल्म आलिया में सिखाया करते थे एक्टर्स को, सीन्स करवाया करते थे, उनसे सिखाते थे. ही हैड डायरेक्टेड ऑल माई सन्स, इब्सन्स प्ले जी. और दैट इज वेयर हरी भाई प्लेड द ओल्ड मैन, द फादर इन ऑल माई सन्स जी. लीला चिटनिस जी उनकी वाइफ बनती हैं उसमें. And he played that old man like nobody. I mean, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. वो परफॉर्मेंस क्या परफॉर्मेंस थी. That's where we had met earlier. और I remember he was 23 years old like. And पापा जी आ गए थे, पृथ्वीराज कपूर जी, उन्होंने देखे थे उसको. और उसके बाद बहरहाल उन्होंने खातिर वादा की, प्ले ख़त्म हो गया, सारे ग्रीन रूम्स में चले गए, वो आ गए उत्तर. फिर शिनॉय भी थे और जॉय मुखर्जी भी थे, वो भी आए थे. तो उनको छोड़ने गए और हरी खड़े हुए थे, उन्होंने छुए, हाथ मिलाया. तो उन्होंने पूछा पापा ने, वो बूढ़े का रोल किसने किया बाप का? एंड वो हरी से पूछ रहे थे. एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट. दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट. That's what he carried all through and always used to say. And we had a rapport from that time. उसके बाद जब मैंने पहली ही फिल्म में I took him as the old man, तो फिर दूसरी फिल्म में फिर ऋषिदा के यहाँ तो I remember हरी ये बूढ़े का रोल बहुत हो गया. ऐसा लोग who is talking. पहले सबसे पहले तो तुमने वहाँ डाला. मैं कहा मेरे लिए तुम पैदा ही बूढ़े हुए थे, मैं देखा वहाँ पे था ऑल माई सन्स में. दैट इज व्हाई दैट इमेज रिमेन्ड विद मी कि यू कैन प्ले राइट फ्रॉम दिस टू दैट. एंड दैट रैपो, देयर वर 2 एंकर्स इन माई फिल्म्स. वन वाज R.D. बर्मन, द अदर वाज हरी भाई. मतलब इसके अलावा अगर कोई प्रोड्यूसर बजिद हो तो और बात है, वरना मुझे ये मालूम था ये हर तरह की फिल्म कर लेंगे, कोई भी हो. मैं दीज 2 आर माई एंकर्स, उनके सहारे मैं चल सकता हूँ, उनका सहारा लेके. तो मैं आखिरी में R.D. बर्मन साहब के पास इसीलिए आना चाह रहा था, मैंने रोक के रखा था. तो आपने बात शुरू की, ये बात शुरू की तो इतना कह चुके हैं हम, आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं आपका R.D. के साथ जो रिश्ता है. इसमें कहानी जब आप लिख रहे होते थे, ये शुरुआत आप लोगों के कोलैबोरेशन की, आज जब जिस ज़माने में हम हैं तो शायद लिरिक राइटर और एक्टर और डायरेक्टर अक्सर कम ही बैठते हैं साथ में, कौन गा रहा है ये भी नहीं पता. वो एक माहौल जो था जिसमें सब एक साथ बैठते थे, एक गाना था, एक सिचुएशन थी, एक आवाज़ थी, एक फीलिंग थी. तो वो कोलैबोरेशन अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि
क्योंकि आप तो शुरू जानते इतने अच्छे से आप कहानी लिख रहे होंगे, तब भी was he participating in that, और जब वो खत्म हो जाता था तब स्ट्रेट सिचुएशन पे ही बात होती थी? नहीं, सिचुएशन की बात उनके साथ शुरू से होती थी, बिकॉज वंस अगेन लाइक हरी व्हेन आई से आई न्यू हिम बिफोर आई बिकेम अ डायरेक्टर। हाँ, पंचम को ऑल्सो जब मैं मोरा गोरा अंगले लिखा था तो ही यूज टू कम विद डग्गा विद सचिन दा टू द ऑफिस, बिमलदास ऑफिस। हाँ, और वो नेकर पहनता था उसको, तो ये उसको हमेशा कहता था, तब से जानता हूँ जब तुम नेकर पहनते थे। ये दिस सेंटेंस रिमेन कॉमन बिटवीन अस। तो he was also a friend from that period. I became a director much later. He became a music director earlier than me. लेकिन एक रैपो जो थी हमारी वो उस जमाने से चली आ रही थी, एक दोस्ताना था। और सिचुएशंस जरूर उसको, पूरी स्क्रिप्ट उसने कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं मांगी, सुनी भी नहीं, उसकी फुर्सत नहीं, तुम बता देना यार, तो अभी चल रहे हैं तो। लेकिन उसके साथ चलते भागते दौड़ते गाड़ी में उसके साथ चले जाए, सुबह आए घर पे तो उठा के ले गया, चलो चल रहे हैं रिकॉर्डिंग पे, क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो एक रिश्ता था उस तरह का, और ले गए साथ में। तो रास्ते में वो गाड़ी पीट के बोनेट पे उसके सामने जो डैशबोर्ड पे मार के गाड़ी बजा के छत पे मार के, और ड्राइव भी कर रहा है, और करते हो इसका यार ये ट्यून बड़ी अच्छी बनी है, इसके बोल दे दे, कुछ ये खो जाएगी नहीं तो, सिर्फ कोई ऐसे डमी बोल दे दे। तो करते हुए फिल्म सेंटर तक पहुंचे, फिल्म सेंटर पे नीचे से कहते थे अब तू वापस जा, ड्राइवर से कहता इसे छोड़ के आओगे, मैं चलता हूँ ना, कौन है इसे, नहीं यार डिस्टर्ब मत किया जा। तो you have that kind of friendship where you can talk like this, and that's the creativity, that's the way to create जी। you're relaxed all the time। और मेरा ख्याल है उनके वहाँ पे बैठे हुए ने बहुत कम लिखे हैं गाने, जो सिटिंग रूम में, सिटिंग रूम में आपको सबको जानते हैं, वो मेरा कुछ सामान का वाक़या जो है हर शख्स को मालूम है, बहुत हो चुका है। तो इस तरह यही था, और वेट किया करते थे कि ऐसे ही एक बाय द वे कि कब उसका कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक आए फिल्म का, किसी का भी हो, तो उसमें ज़रूर जाते थे, क्योंकि वो लास्ट शिफ्ट हुआ करती थी। हाँ, और उसके बाद वो रात भर चलती थी फिल्म सेंटर में। जी जी जी। और आशा जी घर से महाराष्ट्रन स्टाइल का मटन बना के लाती थी, चिकन बना के लाती थी, उसके लिए जाया करते थे। मज़ा आता था, इट वॉज लाइक अ फैमिली लिविंग टुगेदर, वी वर नॉट जस्ट मतलब सिर्फ फिल्म का या जॉब ओरिएंटेड या उस तरह की दोस्तां, उस तरह कम होती हैं उस तरह की टीम्स आज, मुझे मालूम है। एक दफ़ा आपसे भी जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। नाउ इट हैज़ हैपेंड कि मनी सर इज़ मणि रत्नम, उस सर के बगैर उनका नाम पूरा नहीं हो सकता। मनी सर दारुल सलम, ही इज शूटिंग देयर, एंड एक ट्यून पे काम चल रहा है, एंड रहमान इज इन LA in a studio, and I'm in Bombay, and we completed a song. तो जैसे आप शुरू में कह रहा था ना मैं कि you have to learn other mediums also, वो करते कराते अब ये भी सीख लिया, करते हैं इस तरह से। विशाल के साथ मोस्टली फ़ोन पे ही पहली बेसिक बनती है, बाद में बैठते हैं आके हम। बट विशाल के साथ आपका दोबारा जो एक टीम बनी है पंचम दा के बाद, फिर अब आप और विशाल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेंडम, वो भी एक बड़ा यूनिक कोलैबोरेशन है। एक तो ये कि उसके बाद ज़्यादा काम मैंने विशाल के साथ ही किया, और विशाल को अच्छी शायरी की समझ बहुत है, तो आई डोंट हैव टू स्ट्रगल टू पास अ लाइन, ही अंडरस्टैंड्स वेरी गुड पोइट्री, और उर्दू शायरी बहुत अच्छी समझते हैं। और डॉक्टर बशीर बद्र के साथ मेरठ में वहीं बड़े हुए हैं, तो बचपन से उनसे मुलाकात रही। उनके अपने फादर वॉज ए लिरिसिस्ट, वॉज ए पोइट, विशाल के, एंड सो पोइट्री से उनका ताल्लुक़ रहा, तो इसलिए विशाल के साथ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू राइट सॉन्ग्स ऑन बोथ द लेवल्स, डेंटनिंग से लेके अप टू छोड़ा है वो गलियाँ, है ना।
So they range with him. And then totally married to the script. Absolutely. And that's the fun. Okay, you get a full script from him to work on. And that has created a very beautiful rap. तो आज दूसरे रहमान के साथ गाने की फॉर्म चेंज हो गई है. That's the beauty of it. रहमान इज वो एक स्थायी. I hope this is relevant. they are very relevant. कि We'll ignore that it is. कि एक अस्थाई मुखड़े के बाद फिर म्यूजिक आएगा, फिर उसके बाद अंतरा शुरू होगा, और अंतरा के बाद फिर एक क्रॉस लाइन आएगी विच विल कनेक्ट टू द अस्थाई. दैट जनरली द फॉर्म. ही हैज ब्रोकन दैट. जी. उनकी लाइनें चलती रहेंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ और लगा लेंगे. उसके साथ वो दैट हैज कम टू अ ब्लैंक वर्स. एंड आई राइट मोस्ट ऑफ माई पोइट्री इन ब्लैंक वर्स, इन फ्री वर्स. तो ये जो फॉर्म गाने ये की कहानी अलग कर जो दी है. हमेशा कि पहले शब्द आया कि बाद में म्यूजिक आया, कि पहले म्यूजिक आया बाद में लिरिक, ये तो एक फ्यूटाइल और इरेलेवेंट सा डिस्कशन है, क्योंकि आप भी अक्सर कह चुके हैं कि भाई पहले तो म्यूजिक ही आता था साइलेंस में. और मैं जो तो बताया आपको अभी मैंने कि वो तो मुंशी से लिखवा ले, वो ट्यून है ना. हाँ, तो जो it has म्यूजिकल always been स्ट्रक्चर है, following, words have followed. हाँ, तो एक म्यूजिकल स्ट्रक्चर है, वो आपको एक आज़ादी भी देता है, लिखने का एक नया स्ट्रक्चर देता है. बिल्कुल सही है. हाँ, बिल्कुल सही है. तो एक तो स्ट्रक्चर नया मिलता है, मीटर्स नए मिलते हैं. हाँ, जी हाँ. वरना बंधे बनाए पोइट्री के जो मीटर्स हैं 22, 21, 22, हाँ. वरना आप उसी में रहेंगे. लेकिन इससे जो जिस तरह से क्लासिकल म्यूजिक में आप जब विस्तार करते हैं तो उसको कितने पलटे और कितनी तरह की बंदिशें आप बीच में लेकर आते हैं. जी हाँ. है ना. ईच वन, और ईच वन इज कहीं और से होके आप फिर आगे उसी के अंदर से फोक सॉन्ग्स कि फोक सॉन्ग्स भी जिस तरह से चलते हैं उनमें वो बना बनाया स्थायी मुखड़ा नहीं है. तो ये एक नया एडवांटेज है वेयर रहमान हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट कि उन्होंने वो कर दिया. And then there is another one जिनके साथ मैं बहुत काम करते मज़ा आता है. That is शंकर महादेव. मैं उन्हें महाबली शंकर महादेव कहता हूँ. तो महाबली हैं, एंड जो महाबली मतलब भरी मटकी मेलोडी, उसे जब हिलता है उसमें से मेलोडी निकलती है. वो आदमी कमाल है. उसको कोई लाइन दे दो कहीं से, एक 2 मिनट में उसको नाप के कुछ यूं करता है और उसके बाद गाने लिखता है, मीटर गिनता है. दैट्स अनदर मैन, अनदर फिनोमिनल कंपोजर. लेकिन आप इतनी कोलैबोरेशंस के बाद वापस शायरी, लेखन, लिटरेचर की तरफ गए हैं और आप आज लिख रहे हैं, तो कुछ जो आज आप गुलजार साहब कर रहे हैं वो जो लोगों को नहीं पता, तो कुछ अगर मैं जरूरत कर सकूं तो आप कुछ सुनाएंगे? जी हाँ, मैं अगर सुनने को तैयार हूँ आप तो सुनाऊँ. घने जंगल में था, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो निकाल दूंगा. घने जंगल में था, वक्त शायद मुझसे पीछे रह गया था या कहीं आगे निकल के जा चुका था. घने जंगल में था, वक्त शायद मुझसे पीछे रह गया था या कहीं आगे निकल के जा चुका था. अकेला था मैं, कोई रास्ता भी पास से गुजरा नहीं था. क्या बात. मैं जंगल में था. हवा की सांस फूली फूली सी मुझको सुनाई दे रही थी और गुलाबी शाम पेड़ों से लिपटती भागती हंसती हुई और दिन ताक़ुब कर रहा था. पीछे लगा हुआ उसके. हवा की सांस फूली फूली सी मुझको सुनाई दे रही थी, गुलाबी शाम पेड़ों से लिपटती भागती हंसती हुई और दिन ताक़ुब कर रहा था. मुझे धक्का दिया दिन ने, मेरे ऊपर से गुजरी शाम. क्या बात. मुझ पर पांव रख के घने जंगल में मैंने दौड़ते देखा था दोनों को. उड़ाकर धूल मेरे सामने गुम हो गए थे. उड़ाकर धूल मेरे सामने गुम हो गए थे. वहीं पत्तों पे एक पायल मिली थी और दिन के कान का मुंदरा.
परिंदे चहमगोइयाँ कर रहे थे जब नहा धोकर सुबह फिर घर से दिन निकला। क्या बात। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के जाती है नाक में तो झड़ी सी लगती है एक छींकों की, और कुछ रोज़ नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। झड़ी सी लगती है एक छींकों की, और कुछ रोज़ नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। पुराना सा एक ख्याल कि दिन तो टोकरी है मदारी की, पुराना सा एक ख्याल के दिन तो टोकरी है मदारी की, और रात जैसे उसका ढक्कन। गिरा के ढक्कन तमाशा अपना उठाया बब्बन ने और गली पार कर गया वो। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। मदारी मुझको खुदा लगा जब छोटा था मैं। खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशा। क्या बात है। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब। खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। किसी किसी नज़्म को निकालो तो उड़ने लगते हैं खुश्क ज़र्रे से धूल सी। कभी किसी नज़्म को निकालो तो उड़ने लगते हैं खुश्क ज़र्रे। वो नज़्म जो सूखने लगी है पड़ी पड़ी कागज़ों के अंदर, वो नज़्म जो इसलिए न छपवाने दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको। वो नज़्म जो इसलिए न छपवाने दी थी उसने कि लोग पहचान लेंगे उसको, वो अब भी जी करता है कि छपवा के देखूं वो खुद को कैसे पहचानती है इसमें। क्या बात, क्या बात, वाह। वो अब भी जी करता है कि छपवा के देखूं वो खुद को कैसे पहचानती है इसमें। मैं खांस लेता हूँ सांस में जब अटकने लगते हैं खुश्क ज़र्रे। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में। इसलिए कि इस बार जब वो ओढ़ें नमी न रह जाए पिछली नींदों की, उसमें कोई चकत्ता हो ख्वाब का तो वो साफ कर दें। क्या नमी न रह जाए पिछली नींदों की उसमें कोई चकत्ता हो ख्वाब का तो वो साफ कर दें। भरी सी छींक आके रुक जाती है हमेशा पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। तो शायरी से हम एक आखिर बस एक सवाल पे जाता हूँ। सब आप कभी कभी ये कहते हैं कि अगर आपने और कुछ नहीं किया लेकिन जो गालिब पे सीरियल बनाया अगर सिर्फ वही किया होता तो आप संतुष्ट होते। तो वो उस गालिब के सीरियल के ज़रिए आप और क्या कहना चाह रहे थे? गालिब की ज़िंदगी तो बयान करना चाह ही रहे थे, क्यों आपको ज़रूरी लगा उस शख्स की कहानी सुनाना? एक बहुत सेकुलर हिंदुस्तानी को पेश कर रहा था जो क्रिएटिव भी था, ईमानदार भी था, और जिसमें कन्विक्शन भी थी, और आम आदमी की तरह रहा, आम आदमी की तरह जिया, और एक बहुत बड़े दानिशमंद की तरह मोहर छोड़ के गया। मैं बस उस पर एक आखिरी नज़म सुना के आपको बंद कर देता हूँ, जो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आप अपने दौर की बात तो करते चलें हैं, और लेकिन एक उसमें से बताएं जो एक मियाद थी ना इस्तेमाल की, वो गुजर चुकी। वो जो एक मियाद थी ना इस्तेमाल की, वो गुजर चुकी।
दवा की शीशियों पे लिखी जाती है, इसीलिए मियाद बाद इस्तेमाल करने से दवाइयाँ भी बासी होने लगती हैं। दवा की शीशियों पे लिखी जाती है, इसीलिए मियाद बाद इस्तेमाल करने से दवाइयाँ भी बासी होने लगती हैं, फिर कोई इलाज कर नहीं पाती, फिर भी तर्क ना करो तो जहर बनने लगती हैं। बासी हो चुके हैं मजहबों के एतकाद सब, वो जो एक मियाद थी ना इस्तेमाल की, वो गुजर चुकी है। क्या बात है, वंडरफुल। So I'll open this for the audience, but I'll be a little strict. That please ask a question, right? Sudhi, ब्लॉग में आप बाद में लिख दीजिएगा आपके विचार क्या हैं, लेकिन at the moment there is Gulzar साहब here and whatever. Sudhi, Sanjay Chhel, the writer-director, and also a playwright, SMS'd me 10 times today in the morning, since morning, and I would like to pose a question to Gulzar साहब. Question तो नहीं हो सकता गुलजार साहब के सामने किसी का भी, कि possible ही नहीं है. संजय. Namaste, sir. नमस्ते। I was fortunate to work with you in my first film, Khoobsurat, and you blessed me. And I'm connecting to that, that whenever I was with you, I was laughing, I was smiling, and you have a great sense of humor. But my complaint और मेरा अचरज ये है कि आपको ज़्यादातर लोग काफ़ी गंभीर कविताओं से और शायरी से जानते हैं, और मुझे इस बात का एक सवाल उठता है कि आप इतने विटी हैं, इतने फ़नी हैं ज़ाती ज़िंदगी में, तो आपने ज़्यादा कॉमेडी फिल्म्स क्यों नहीं लिखी या बनाई? कॉमेडी क्या नहीं की? फिल्म्स बनाई, अंगूर के अलावा ज़्यादा कॉमेडी फिल्म्स आपने क्यों नहीं बनाई? नहीं, एज एन ऑडियंस मेरा सवाल है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अंगूर ही की हो। चुपके चुपके आपने देखी? जी। चुपके चुपके was directed by Rishida. I have written the whole script, and Rishida के साथ 2-3, and Rishida had a better knack of comedy than even me, better knack of a humor, good humor with him. So I followed him and I kept on doing my work with him. खूबसूरत जो उनकी बनाई हुई है, जो आपने भी बनाई बाद में, लेकिन उनकी बनाई हुई खूबसूरत फिल्म आई थिंक वाज फुल ऑफ ह्यूमर एंड येट सो मीनिंगफुल एंड सो गुड कैरेक्टर्स। तो लिखता तो रहा हूँ, मतलब जब सारा तो डायरेक्शन का काम खुद नहीं कर सकते, आपने तो किया, आप भी कीजिए कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू। आशुतोष, you like to? Yeah. मुश्किल सवाल मत पूछो। सर मुश्किल नहीं है, जस्ट एडमिरेशन है कि हाउ डज वन पर्सन, आपने उसका एक्चुअली जवाब दे दिया, ये सवाल जो मेरे माइंड में बहुत सालों से था, कि हाउ डज अ क्रिएटिव पर्सन डिफरेंशिएट व्हेन ही इज डायरेक्टिंग, राइटिंग और जस्ट डूइंग लिरिक्स. एंड आई थिंक इट्स जस्ट बीन अ आउटस्टैंडिंग करियर दैट यू हैव हैड. इनफैक्ट ये तो खाली डायरेक्टोरियल फिल्म्स हैं, आपकी लिस्ट लिरिक्स की तो अनगिनत है. And I really, and as screenplay writer, I think you are institution in yourself for all of us, and we look forward to your words. Personally, some lines that always stay in my mind, I'm sure a lot of you all have the same lines, कि जी में आता है सर छुपा के रोते रहें, या तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं. I mean, it's outstanding. How did that thought come to your mind? Repeat your last sentence. जी में आता, तुम जो कह दो. नहीं, जो लास्ट सेंटेंस आपने क्या कहा? How does it come to your mind? कुर्सी पर बैठकर। We won't forget that either. इसका और कोई जवाब नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं कहूँ हाउ डज इट, मतलब और कैसे आएगा? गुलजार साहब, हमने कहीं पढ़ा था कि योर वन ऑफ द बेसिक issue was that you always said that you couldn't work with Rajesh Khanna, and that was, you still remember him.
Can you elaborate on your feel about Rajesh Khanna as an actor, and why do you feel that it would have been good that it would have worked with Kaka? नहीं, हमारे सबसे पहले सुपरस्टार थे, बस वो मौका ही नहीं मिला. और आई रिमेंबर सिप्पी साहब के, दिस वाज जीपी सिप्पी, मिस्टर जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी साहब के फादर. आई रिमेंबर सीता और गीता बन रही थी और वो बड़े नाराज़ हुए थे सिप्पी साहब. आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, ही वॉज इंट्रोड्यूस बाय हिम इन सम फिल्म राज आई थिंक, और आप हीरोइन को लेके फिल्म बना रहे हैं और वो भी डबल हीरोइन को, एक ही दो रोल, और मैं यू डिडंट फाइंड अ फिल्म फॉर मी. तो वहीं पे बैठे बैठे उनसे फिर सब लोग आपस में बड़ी बेतकल्लुफी से बात करते थे. नोबडी, एक तो मुश्किल ये है कि यहाँ जितने लोगों ने हिस्ट्री और किताबें लिखी हैं फिल्मों पर, ऐसी ही एक पर्सनल शिकायत है, छोटी सी गिला है. जितनी किताबें फिल्मों पर आ रही हैं और फिल्मों के बारे में आ रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, नन ऑफ देम हैव रियली बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड दे हैव ऑल रिटन दोज ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स. और किसी को ये नहीं मालूम कि फिल्म बनती कैसे है और टीम कैसे बनती, कैसे काम कैसे करते हैं, एंड दे हैव रिटन बुक्स. इसलिए ये बीच में, और उनकी बनाई हुई कहावतें भी बहुत सी चलती रहती हैं. तो ये एक बीच में ख्याल आ गया कि ये फिल्म वालों ने नहीं लिखी है कोई भी. आई होप द हिस्ट्री इज़ नॉट बीइंग डाइवर्टेड हियर एंड देयर, क्योंकि वो काफ़ी स्कैटर्ड है. किसी जिसके मुंह में भी कोई भी बात आ जाती है वो कह देता है, जैसे मैं कहने लगा हूँ कि वे याद है, मैं उन्हें आनंद की फिल्म का आइडिया बताया. मैं कहा लिखो, हीरो पे कहानी है बड़ी अच्छी तुम्हारे, लेकिन आंकड़े उसमें नहीं सूट करेंगे. छोटी फिल्म है, ऋषिदा कर रहे हैं. तो कहानी का आइडिया मैं सुनाया तो एवरीबडी लाइक रिएक्टेड टू इट एंड सो डिड काका. काका ही बुलाते थे मैंने. तो कहीं यार ये फिल्म तो करनी है मुझे. मैं कहा मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिला सकता हूँ ऋषिदा के पास, ले चलो. लेकिन आई एम टेलिंग यू कि तुम्हें ये जिस तुम आंकड़ों पे काम करते हो ना, वो सूट नहीं करेंगे. इसे नहीं यार, तो भूल जाओ, मुझे चलो तुम ले. तो उस वक्त मैं अपने पहली गाड़ी, एक छोटी पुरानी फिएट ले ली थी, तो उस पर ले गया उनके. एंड सिप्पी साहब वॉज देयर अगेन, मिस्टर NC सिप्पी, जिनसे मैं कहा था कि मेरे एक बेहतरीन प्रोड्यूसर जो मिले जिन्होंने ब्रेक दिया था. वो गए तो वहाँ ऋषिदा से बात हुई. ऋषिदा ने कहा देख, उस तरह की स्टार वाली फिल्म मैं नहीं बना सकता. हमारा जो बजट है, तो मैं तुम्हारी प्राइस. तो सिप्पी साहब वहाँ पर बैठे हुए बोल रहे, कह लो प्राइस तो पूछ लो दादा, मैं बनाता हूँ ना, आप प्राइस तो पूछ लो इससे. कहने दादा इसकी प्राइस आपको मालूम है स्टार्स की, तो जो भी कोई प्राइस इस तरह की उन्होंने कहा, कहने करेंगे ना, मैं करूँगा तुम्हारे साथ. कहा जी मुझे ये फिल्म करनी है. And that honesty, I mean, in spite of being a star, that honesty towards the film which he wants to do, every star does it. I mean, they are not untouchable. They are वैसे नहीं हैं जिस तरह से images बाहर हम देते हैं. They are all lovely people and they all शायद बाहर वाले I don't know why untouchable star कर देते हैं. They are human beings, they are friends, they are good friends, they are relatives. ये बातचीत में एक बात रह गई. नहीं इसमें ये कि सिप्पी साहब ने उनसे सिर्फ इतनी बात की कि देखो काका, जो भी रिटर्न्स हो, जो भी इस फिल्म से आएगा, तुम ये बताओ, एक टेरिटरी चुन लो, जो चाहो तुम वो ले लो, और कोई उसमें ब्लैक नहीं, कोई वाइट नहीं, कुछ नहीं है, वो ले लो तुम. एंड ही इमीडिएटली एग्रीड. इसे बम्बई मुझे दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं. एंड ही टुक इट एंड ही मेड, मोस्ट सिंसियरली ही मेड द फिल्म. और उसके बाद जब जुबली हुई तो सिप्पी साहब ने कहा देखो ये मुंबई में जुबली हुई है, ट्रॉफी उससे मांगो जाके. एंड काका गेव अ बिग पार्टी. सो देयर आर, कम टू थिंक ऑफ इट, दे आर बेसिकली लवली ह्यूमन बीइंग्स ऑल ऑफ देम. यू हैव टू समवेयर टच देम ना करेक्टली. आपने 3 बार थिंग्स हैव टच्ड यू इन अ पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ वे. तो आपने 3 बार, आदमी का तो नज़रिया पॉलिटिकल होता ही है और आपकी सारी फिल्मों में वो नज़रिया होगा, लेकिन आपने आंधी जो शायद पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है बल्कि रिश्ते के बारे में, बट माचिस और हुतुतु
3 बार आपने you felt compelled to make a film, especially with Machis. Do you want to talk a little, elaborate what led? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन Political जो माहौल- एवरीडेज पॉलिटिक्स जो आपके सामने घटती है, जो आपके सामने वाक़ हो रही है. पहली फिल्म मेरे अपने, जी, I have made my comment about what is happening in my times, so that it's there on the record. I have mentioned about elections in that also. Later films also. जी, कहीं ना कहीं आपको वो जरूर मिलेगा, बिकॉज आई एम कॉन्शियस एंड हाँ, वो नजरिया तो है ही आपको, बिल्कुल। अनकॉन्शियस तो हो नहीं सकता, कॉन्शियस ही हालत में उतना सा कमेंट जरूर होता है कहीं ना कहीं कि ये किस दौर में है और नहीं, ये दौर कौन सा है जिसकी कहानी मैं कह रहा हूँ. तो कॉल इट सोशल, कॉल इट पॉलिटिकल, कॉल इट एनीथिंग. अपने वक्त में के बारे में Yeah. कुछ वो कितना आपको माचिस भी जैसे कहिए, तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग ऑफ अ कॉमन मैन, व्हाट पॉलिटिक्स इज डूइंग टू द कॉमन मैन, what politics is doing to the youngsters, what they are doing to the youth. जी हाँ, I'm talking about that. Those were innocent school, college boys who dragged them to this end. I mean, I'm only commenting on that. I'm talking about those innocent boys. In a way, अगर आप देखिए तो it's a updating of मेरे अपने, the youngsters of मेरे अपने. And there was no time for picking up a hockey and a cycle chain. Now they pick up AK-47 and look at them. It's the story of the same youth in these times. So you come to know, okay, where have you traveled in these 15 years? 15 साल में आप वहाँ से यहाँ चले गए. So look at it. So I'm talking of a common man again. brilliant, absolutely. I just thought that was one moment that's left. Any other question? Shukla ji. Shukla ji. Shukla ji is a writer. सर मैं बस एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे जीतू जी थे अभी यहाँ पर, तो हर आदमी के एक जहन में एक उसकी पहली फिल्म की तस्वीर हमेशा खिंची रहती है. मेरे जहन में परिचय की तस्वीर है जो मैंने जिद करके देखी थी. मैंने खाना नहीं खाया बचपन में कि मुझे ये फिल्म देखनी है. फिर आपने गाना लिखा जंगल बुक के लिए, जंगल जंगल बात चली है पता चला है. तो मेरा सवाल बच्चों की फिल्म को लेकर के है. अभी आप मोटू और पतलू में भी फिर से गाने लिख रहे हैं जो अगले महीने रिलीज़ हो रही है. तो हिंदी सिनेमा में जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बच्चों की फिल्म की तरफ इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? इसके ऊपर मैं जानना चाहता आपके विचार क्या हैं. बच्चों की फिल्में, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल they don't find it profitable, the producer, and that's why probably they don't make it. है ना? उनको अगर प्रॉफिट नज़र आता तो वो ज़रूर बनाते. कोई सवाल ही नहीं होता कि वो ना बनाए. जहाँ प्रॉफिट नज़र आएगा वहाँ दुकानदार पहुँचेगा, लेकिन उसमें उनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा. और दूसरे ये कि हमारे यहाँ, लेट मी अगेन कन्फेस अनदर थिंग, लिटिल थिंग, बच्चों के लिए हम कहते बहुत हैं, हमारी आने वाली नस्लें, हमारा फ्यूचर, हिंदुस्तान का फ्यूचर. कभी महसूस भी किया है कि सिर्फ कहा ही है, सिवाय जुमले कहने के हमने कुछ नहीं किया है. वी हैव नॉट केयर्ड फॉर आवर चिल्ड्रन. वी हैव बिहेव्ड वेरी वेरी बैडली विद आवर चिल्ड्रन. वी डोंट रिस्पेक्ट देम. We love them, we love our own children, and perhaps only your own, and not even the neighbors. Our basic attitude towards children is bad. It's dirty. 3 years old, 4 years old, 5-year-old child in school buses being raped, being molested. Can you, as a nation, boast of your concern with the child? कहीं नजर आता है आपको? वरना एक बच्चा सड़क पार कर रहा हो तो पूरा ट्रैफिक शुड कम टू अ हॉल्ट कि दिस चाइल्ड इज लेट हिम क्रॉस द रोड. There is something basically wrong with our society. We don't love children. We don't really love them. We only create a hoax and we are hypocrite when we say कि हमें अपने बच्चों का बहुत ख्याल है. कुछ नहीं करते आप. बच्चों के साथ कोई कंसर्न नहीं है. There is no literature about children being written except Marathi, Malayalam and Bangla. इन 3 ज़बानों के अलावा आपकी राष्ट्रभाषा is 0. Some major languages are below 0.
आप फिल्मों की बात करते हैं, आपके पास चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनी हुई है, कम से कम 300-350 फिल्में अनरिलीज्ड अनसीन पड़ी हुई हैं अभी तक डिब्बों में। किया गया है, एक्सेप्ट दैट आप हाथ साफ करने के लिए नए नए फिल्म मेकर पहुंच जाते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट कंसर्न्स मी दिस कंडीशन मच मोर as you think of the children and talk of the children. I'm sorry for losing my pitch. I'll request, we have a lot of students here. Some of the students, 2 or 3 questions. I'll request if anybody, we have a lot of mass communication filmmakers and youngsters here. आप मेंशन कर रहे थे कि आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग होती थी जब आप काम करते थे सारे साथ में, एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप होती थी और वर्क कल्चर साथ में मिक्सड होता था। इन टुडेज जनरेशन जहाँ सब प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ डू यू बैलेंस वर्किंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड प्रोफेशनल्स? आई मीन हाउ डू यू काइंड ऑफ सॉरी, मैं आप समझाएंगे मुझे, मैं सवाल नहीं समझा। मतलब जब दोस्त भी होते हैं और प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं तो वो बैलेंस कैसे होता है? मतलब कहाँ दोस्ती खत्म होती, कहाँ? प्रोफेशनल एंड दोस्ती में मतलब नहीं, मैं दोस्त की तरह प्रोफेशनल नहीं हो सकते क्या? Why can't you? हाँ, दोस्त की तरह प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं अब दुश्मन हो गया या अब दोस्त नहीं है। आई थिंक नहीं, सवाल में बैलेंस नहीं है, सवाल का बैलेंस कीजिए, मैं दोस्त और प्रोफेशनल में बैलेंस कर लूँगा। Yeah, next. Yeah. I'm really fortunate enough to attend this master class. And sir, I have got a question for you. Sir, who is the writer who influenced you so much? You know, everybody's in everybody's life, somebody influenced. So what is your influence for the creative process? मैं एक बात अर्ज करूं, मेरा ख्याल है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु मिलते हैं, एक गुरु नहीं होता, बहुत सारे उस्ताद होते हैं, बहुतों से सीखते हैं, एक गुरु नहीं। एंड आई हैव लर्नड इट फ्रॉम मैनी, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। एंड इफ आई टेक अप पोइट्री फॉर एग्जाम्पल, बुल्ले शाह, नानक और फरीद सुनते हुए बड़े हुए हैं हम लोग, वारिस शाह को सुनते हुए बड़े हुए हैं पंजाब से। एंड आला उदल यूपी में आके सुना है, आला उदल के किस्से आज भी लोगों को याद नहीं कि आला उदल क्या थे। हमने एक फिल्म में भी विशाल के इस्तेमाल किया उसे। एंड बाउल सुने हैं बंगाल के, और टैगोर को पढ़ा है, क्या बात है। और पढ़ा है और ट्रांसलेट किया है। आई published 2 volumes of Tagore recently. One which he wrote for children and one of his young age. Not कि आपने संत बना रखा, पूजा करते हैं दाढ़ी के साथ उसके, वो नहीं है। He was a very handsome young man and a very romantic person. और उस वक्त की पोइट्री उनकी पढ़िए, which is worth knowing and worth reading. तो बंगाल का भी असर हुआ, मतलब इतना हुआ कि फिर वो एक बंगालन से शादी भी कर ली और वो भी किया, तो इश्क भी कर लिया, तो ये सब कुछ हुआ उसी में। फिर महाराष्ट्र में आके आई ट्रांसलेटेड, इफ़ यू लिव इन अ प्लेस लाइक से महाराष्ट्र, तो आप कैसे असर नहीं होगा आपके पास, यहाँ की हवा का असर कैसे नहीं होगा, यहाँ की बोली का असर कैसे नहीं होगा आपके ऊपर, इफ़ यू आर रिसेप्टिव, if your antennas are open. I translated Kusumagraj, उनकी एक वॉल्यूम लिखी, then I translated Vindaji and went with Vindaji from here to Surat, listening to him, and there also listened to him in that function. And then I translated him and read his translations in front of him in a function here in Bombay. Then Dilip Chitra, and the most favorite poet of mine, Kolatkar. अरुण कोलाटकर, इतना कमाल के शायर, और मैं उनसे मिल नहीं पाया, ऐसे मिस हो गया। पीएल साहब के पास गए, पीएल कुछ सुनते रहे, कुसुमाग्रज उनको भी सुनते रहे, मिलते रहे। आई मिस्टर अरुण कोलाटकर, और बड़ी
तकलीफ हुई कि इतने पास से गुजरे और यही था कि कभी मिलेंगे ज़रूर, पर मिस हो गया, निकल गए। तो मैंने उनकी, अरुण शोटे मेरे एक दोस्त हैं, मराठी के शायर हैं, उनसे कहा कि कोलाटकर की तस्वीर मेरे टेबल पर है बंगाली। मैंने कहा अच्छा मिले नहीं तो उनकी टेबल पर तस्वीर तो रखूँगा। तो बट आई हैव लव्ड इट ऑल, लव पोइट्री ऑल अराउंड इंडिया। एंड आई फॉरगेट द क्वेश्चन। Who all influenced you so all? हाँ, influences. तो मेरा, if you have an aptitude, I think you receive from everywhere. Students behind, yeah. One or two questions from the students, please. And please be precise. Good evening, sir. My name is Mansa. जरा सा जोर से बोलिएगा। Good evening, sir. My name is Mansa. evening. Sir, my question to you is, could you share some of the Western cinema influences that you may have had in your films? And आप समझाइएगा। कोई वेस्टर्न सिनेमा का इन्फ्लुएंस आप पे, कोई डायरेक्टर? सिनेमा का तो असर इतना नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिनेमा देखा भी नहीं, और जाहिर है कि इसलिए इतना ज़्यादा नहीं सीख पाया कि मैं अच्छी और बेहतर फिल्में बना सकता। लेकिन ये कि लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर ऑफ कोर्स हैज़ बीन विद मी ऑल अलोंग, एंड पोएट्स पर्टिकुलरली, द ऑडिन एंड इलियट एंड सो मैनी। मतलब इस वक्त ऑफ हैंड नहीं नाम याद रहे, लेकिन आई एम रेगुलरली इन टच विद व्हाट इज बीइंग रिटन इन द वेस्ट, particularly European poetry, European fiction, not so much of American as much of European. अब वो इन्फ्लुएंस है या क्या कहें, लेकिन सीखा है, मतलब they become a part of you, whatever you learn, and it's not necessarily an influence. आपकी उपज उसी में से कहीं ना कहीं से निकलती है, जो आपके अंदर जमा होता रहता है, और आपका अपना एक्सप्रेशन मिलता है उससे। तो ऐसा कुछ हुआ। Yeah, one more question, the last question, because short of time. नमस्कार Yeah. सर। नमस्कार सर। सर, आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस के साथ काम किया है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन से, किन से के साथ काम किया? मतलब इतनी जो ज़बानों के language- साथ आपकी वाकफियत रही है, तो किसी से आप किन ज़बानों के साथ? जी। नहीं, वैसे तो- ज़बानें, इतनी ज़बानों में काम नहीं किया, इतनी ज़बानें सुनते आए हैं, लेकिन ये कि पंजाबी मेरी मादरी ज़बान है, बंगाली मेरी मोहब्बत की ज़बान है, और महाराष्ट्र मेरी रोज़मर्रा की ज़बान बन गई, महाराष्ट्र में मराठी। The last question here, please. Actually, everybody is in so much of awe. जब सवाल पूछे तो क्या पूछे? In the last question, because we are falling short of time. गुलजार जी, just very quickly, I think Indian cinema अब एक ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पे I think stars who were important are important, but we are becoming more receptive to good stories. And my question to you is that, as you said, there are lots of books written by people who may not even understand the business. तो आपकी तरफ से आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसी कोई किताब लिखूं जहाँ पे मैं बता सकूं, या मैं ऐसा इंस्टीट्यूट कुछ खोलूं जहाँ पे मैं लेखक बना सकूं? क्योंकि ये देश में इतने स्टोरी टेलर्स हैं, एंड आई थिंक अब वक्त आ गया जहाँ पे कदर भी बहुत है लेखकों की, ऑलवेज थी लेकिन अब ज़्यादा है। मतलब ऐसी कोई किताब कि मैं लेखक बना सकूँ, जहाँ पे वे यू कैन टेल पीपल हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू राइट स्टोरीज, और मतलब कैसे आप फिक्शन राइटिंग बहुत सिंपल तो है नहीं, इवन इफ यू हैव अ ग्रेट आइडिया देयर इज अ मेथड दैट इज अप्लाइड बाय डिफरेंट पीपल, और आपका तो सबसे बढ़िया मेथड है। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि आपको कमी लगती है हिंदुस्तान में, लिटरेचर की कमी लगती है आपको? नहीं लगती। फिर क्या सिखाना है? अरे इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं बैठे हुए भाई, ये इनसे पूछे, ये आशुतोष से,
बताइए कहाँ से चैप्टर हिस्ट्री में से निकाल लेते हैं और कितना कुछ है लिखा हुआ। यू नीड एन आई, यू नीड एन इंस्टिंक्ट। आप वरना सूंघ के हर पन्ने से कहानी निकल आती है। और आप सिर्फ उसे हिंदी या अंग्रेजी मत देखिए, जितना अच्छा और बड़ा लिटरेचर हमारी रीजनल ज़बाने में, वो रीजनल नहीं है, दे आर ऑल नेशनल लैंग्वेजेस। वी कॉल देम बिकॉज ऑफ द रीजन, दे आर नॉट रीजनल लैंग्वेजेस। A classic language like Tamil, a language like Malayalam. I mean, Vaikom Bashir would an example even today for the young writers from Malayalam. सही बात है. Yeah. And then in poetry, Sajidanandan जैसे poets, these are there. किसी जबान में उठा लीजिए, मराठी is full of it. I mean, हर जबान में इतना लिटरेचर तो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में इतनी जबानें और ना इतने राइटर्स हैं, तो किस चीज़ की कमी है? कमी शायद पढ़ने की होगी, आपके पास वक्त की कमी। बिल्कुल सही बात है। I think we are coming to the end of this master class, but before we come to an end, ये जो पूरा मिशन ऑफ इफ्तिदा और हमें इस मिशन को पूरा करने में जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें एक गुलजार साहब जैसे ही हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हामी भरी, तो मैं अश्विनी, हम जितने भी ईसी मेंबर्स हैं इफ्तिदा के, हमने कहा यार गुलजार साहब ने हाँ कर दिया है, तो इसकी अगर होर्डिंग्स नहीं लगेंगी तो फिर हम क्या फिल्में बना रहे हैं और हम क्या इंडस्ट्री में हैं। तो एक माई बाप है होर्डिंग्स का मुंबई में, जिसका नाम है योगेश लखानी। इसकी बदकिस्मती है कि इसका दफ्तर में हमारे इफ्तिदा ऑफिस के ऊपर है। हम 10 डायरेक्टर्स उसके पास पहुंच गए, हमने कहा बेटा 5 होर्डिंग्स लगा, गुलजार साहब आ रहे हैं हमारे घर। मैं योगेश लखानी का शुक्रगुजार हूं इफ्तिदा की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, कि पहली बार किसी भी एसोसिएशन के इतिहास में या किसी भी फंक्शन में किसी भी ऐसे इवेंट की होर्डिंग्स इस शहर में लगी हों। मैं योगेश लखानी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मंच पे आए और गुलजार साहब हमारी तरफ से और आपकी तरफ से एक बुके योगेश को प्रेजेंट करें। ये काफी सोशल वर्क करता है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आनंद पंडित, हु इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, अनुपम खेर, एक्टर प्रिपेयर्स, TFS, ब्राइट, योगेश जी गए, बॉलीवुड हंगामा, नीरज रॉय हैज बीन अ great pillar and help to us. Movies, the owner, the proprietor of this movies.com is also here. We are really thankful to you. Iftida really thanks you for being with us, who is there also in the auditorium also. And Bombay Casting, that's Sunil Bora. गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के पहले एक इंस्ट्रक्शन है। गुलजार साहब ने मुझे कान में कहा था कि कोई भी गुलजार साहब के साथ सेल्फी नहीं खींचेगा, क्योंकि ही डजंट लाइक इट। एंड मैं इस भरी सभा में गुलजार साहब से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि नहीं सेल्फी नहीं चाहिए। मुझसे एक गलती हो गई। प्रोग्राम था हमारा 3:30 बजे का और मैंने गलती से गुलजार साहब को SMS टाइप करते करते 3 बजे का टाइम लिख दिया और मैंने रियलाइज़ नहीं किया। सर, इस भरी सभा में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और गुलजार साहब 2:45 बजे थिएटर के अंदर एंटर कर गए। सर, ये जो एक्ट आपका है, ये डिसिप्लिन जो है, ये अगर हम सब में आ जाए तो आई थिंक वील ऑल बी एज सक्सेसफुल as possible. Once again, a standing ovation from all your side to Gulzar Sahab. Ashwini, I will request the EC of Iftida to come on the stage, please. Gulzar Sahab, ये सारे लोग हैं जो हमारे एसोसिएशन के EC members हैं. Nobody will come on the stage. Nobody will come on the backstage. It's a please request. Let us maintain a decorum and a dignity of this show. कुकू जी आइए, और शामिल जी, सौरभ आओ।
A standing ovation to all the EC members of IFTDA. Salute to the directors fraternity. Salute to the assistant directors. And thank you all for a wonderful crowd and a wonderful audience. Thank you very much. Thank you.